Please understand that what all I have done is from the syllabus. Whenever I take a class, I tell you to mark it. So I've covered more than 90% of the classes. एक आपका interesting topic, interesting issue रह गया था जिसके ऊपर मेरी आज की क्लास है. The class will continue for the next 40 minutes in the first session. In the second session, you have got all the, I would say, questions that you can ask me. I'll try to speak for the next 30 minutes, but very importantly, may I please request you that keep one eye on the, what I would request you is that keep your paper and pen ready. If you have got anything which is not clear, you can ask me, interrupt me. Just supposingly, if you have got any questions after the class, you can email it to me. I think the class mein main yahi bolta hu. So I've already spent 1 and 2 minutes. Let me define the topic today. Readership issues in media. अगर आप, I think somebody is creating a disturbance in the background. May I please request you, अपने background को mute कर लीजिए. Yes, thank you very much. So, readership's issue in media, that is the topic that I am going to take. आपके syllabus के अंदर कहीं ना कहीं पर जरूर mentioned होगा. So please, you can see. Students, the first thing which I want to tell you is readership the same as circulation? क्योंकि लोगों को इस चीज में एक बहुत बड़ा डाउट है कि अगर एक न्यूज़पेपर की 2 लाख कॉपीज एक दिन में बिक रही हैं, तो क्या वो 2 लाख कॉपियां पढ़ी भी जा रही हैं? ये तो वही बात होगी कि एक दुकान ने अपनी दुकान के अंदर 500 पैकेट एक पर्टिकुलर ब्रांड ऑफ वॉशिंग पाउडर के रखे. वो 500 पैकेट डिटर्जेंट पाउडर का रखना 500 पैकेट डिटर्जेंट पाउडर के बिकने से एक अलग वास्तविकता का रूप है. So students, you need to understand what is the difference between readership and circulation. So I'm not starting the topic from the start. I'm starting this topic from midway because I think more important for you before I define readership is the difference between readership and circulation. और विश्वास कीजिए, अगर आपको ये चीज समझ में आ गई, द डिफरेंस बिटवीन लीडरशिप एंड सर्कुलेशन, तो मैं ये मानूंगा कि मेरी फर्स्ट हाफ ऑफ द क्लास इज ऑलरेडी अ हिट. मेरी फर्स्ट हाफ ऑफ द क्लास इज ऑलरेडी डन, क्योंकि सेकंड हाफ के अंदर मैं आपको कुछ चैलेंजेस ऑफ प्रिंट मीडिया बताने वाला हूं, कंसिडरिंग किस हिसाब से कोविड की वैक्सीन आएगी, कब वैक्सीनेशन होगा, कब क्राउड मैनेजमेंट फैसिलिटीज दोबारा आएंगी और कब लोग एकत्रित होंगे. आई एम श्योर यू मस्ट हैव बीन रीडिंग इट इन द न्यूज़पेपर्स दैट even Delhi government has indefinitely shut down all education institutions including schools till the vaccine is developed. चलिए खैर वो इशू कभी बाद में. Let's start with the very first slide. Once again, जिन बच्चों ने थोड़ा लेट ज्वाइन किया है, विश्वास कीजिए मैंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ाया, मेरी अब क्लास शुरू हो रही है. So मैं हमेशा कोशिश यही करता हूँ कि पहले 2-3-4 मिनट I wait for the late comers, but please second session में टाइम से आप लोग प्लीज आ जाइए. So please take out your syllabus, look into it and just put a tick mark on readership in media. Readership issues in media जरूर कहीं ना कहीं आपके सिलेबस में होगा. ये सिलेबस मेरे पास व्हाट्सएप पर है, तो अनफॉर्चुनेटली अभी मैं व्हाट्सएप पर आपसे बात कर रहा हूँ, तो मैं वो सिलेबस खोलकर आपको एग्जैक्टली पॉइंट नहीं कर सकता. पर जिनके पास सिलेबस की हार्ड कॉपी है वो प्लीज देख ले, क्योंकि आज हम रीडरशिप इन मीडिया इश्यूज है. दूसरी चीज, लास्ट क्लास में एक स्टूडेंट ने बोला था कि शायद स्लाइड्स वगैरह की कोई इंक्वायरी की थी, वो मिली नहीं. तो सारी स्लाइड्स मैंने हमारी वंदना मैम जो कि डीन है, शी इज जॉइंड बैक, तो उनको मैंने मेल कर दी है. तो आप दीपिका मैम और वंदना मैम से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं. ऑफ कोर्स I have always been saying the educational material is for your benefit, but the knowledge is something which you should aspire for. So let's get started. Readership management in media. What is the difference between readership and circulation? पहला slide को मैं पढ़ता हूँ. Circulation is the count of how many copies of a particular publication or magazine or newspaper are distributed. Circulation audits are provided by the ABC Audit Bureau of Circulations, whereas readership is an estimate of how many readers a publication has. At most, publication can have more than one reader per copy. The PAMCO का full form है
पब्लिशर ऑडियंस मेजरमेंट कंपनी। मेरी ये छोटी सी रिक्वेस्ट है स्टूडेंट्स की, आप इस वर्ड को जिनके पास पेपर पेन है लिख लें, PAMCO, और इसको गूगल सर्च करें और इसके ऊपर आपको पैमको की वेबसाइट भी खुल जाएगी। पैमको के बारे में आपको बहुत कुछ पता लग जाएगा। पैमको क्या है? इट इज द गवर्निंग बॉडी विच ओवरसीज ऑडियंस मेजरमेंट फॉर द पब्लिश्ड मीडिया इंडस्ट्री। बड़े एक्साइटिंग है पैमको की वेबसाइट। सुबह मैंने 1 घंटा इस वेबसाइट को दिया और काफी कुछ नया सीखने को मिला, पर क्योंकि क्लास के अंदर इस वक्त मेरा फोकस किसी और के ऊपर है, इसलिए मैं उसी सब्जेक्ट को करा रहा हूं। Once again, circulation is the count of how many copies of a particular publication is distributed, whereas readership is an estimate of how many readers a publication has. At most publications have more than one readers per copy. The PAMCO readership estimate is very different from the circulation count. Also, readership estimates are an indicator of the demographic profile of the readers and the psychometric profile of the readings that they do. The relationship between readership and circulation is known as readers per copy. That is readership divided by circulation. The numbers of readers per copy varies considerably by publication. The examples can be of magazines, newspapers, literature, etc., etc. Students, ध्यान से समझिए। सर्कुलेशन का मतलब है कि आपने एक कितने नंबर ऑफ कॉपीज एक जगह पर पहुंचाई या डिस्ट्रीब्यूट करी। रोज सुबह दिल्ली के हर कोने के अंदर स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पर अखबार वालों को अखबारें दी जाती हैं, पर शाम तक दोपहर तक इतना पता लग जाता है उनमें से कितनी अखबारों की या तो सेल हुई या वो मंथली बेसिस पर लोगों के घरों में डाली गई और कितनी अखबारों की वापसी। सो रीडरशिप इज नॉट अबाउट publication and distribution. Readership is all about how many readers are effectively going through that copy. जैसे कि एक जॉइंट फैमिली में अगर 2 अखबारें आती हैं तो हो सकता है उस फैमिली में 2 ब्रदर्स हो और उनकी फैमिलीज हो और 7 या 8 एडल्ट मेंबर्स हो। आजकल कोविड का टाइम है, सब लोग घर पे ही होते हैं, हर कोई सुबह उठकर नेट पे न्यूज नहीं देखता, किसी को अखबार पढ़ने की आदत है, तो हो सकता है उस अखबार को 1 नहीं 2 नहीं 4 से ज्यादा लोग उस अखबार को पढ़ रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट इसी स्लाइड का सेकंड पार्ट कहता है रीडरशिप एस्टिमेट शो द डेमोग्राफिक प्रोफाइल ऑफ द रीडर्स एंड द साइकोसोमैटिक पार्ट ऑफ द रीडिंग दैट दे डू। अब जैसे मैं आपको बड़ा अच्छा एग्जांपल देता हूं। अब जो लोग, कहना नहीं चाहिए, थोड़ा आपको शायद बुरा भी लगे, जो लोग वेस्ट बंगाल साइड के हैं या बंगालीज हैं उनको ज्यादा इसके बारे में पता होगा कि they like to read something which is always for the labor, of the labor. थोड़ा मार्क्सिज्म उनकी अप्रोच है। They are oriented to not know the positivities of the government or what is happening in the country, but they want to see the negativities or the failures of the government. तो अगर आप ध्यान से देखें, कुछ ऐसी मैगजीन्स हैं जो एंटी गवर्नमेंट आर्टिकल्स लिखती हैं, सरकार के अच्छाइयों के बारे में नहीं, उसकी कमियों के बारे में ज्यादा कर बताती हैं, जो कि वेस्ट बंगाल पार्ट के अंदर, कर्नाटका में, कुछ पार्ट्स ऑफ इंडिया के अंदर जिनकी डिमांड बहुत ज्यादा है। उसी तरह माइंडसेट, जैसे कि इफ अ पर्सन इज रीडिंग द हिंदू और द एशियन एज, पीपल आर रीडिंग इट फॉर द लिटरेरी कंटेंट, उसके अंदर लिटरेरी कंटेंट, उसके अंदर एडिटोरियल की वैल्यू ज्यादा है। आई डोंट नो आप में से कितनों ने इस मैगजीन का नाम सुना है, कैरावन, ये 25 सालों से छप रही है। इट इज मोर ऑफ एन एसे टाइप ऑफ अ बुक। वो टॉपिक को डिफाइन नहीं करता, वो आर्टिकल को डाइसेक्ट करता है। जैसे बायोलॉजी के अंदर आप एक कॉकरोच को या एक फ्रॉग को डाइसेक्ट करके उसके अंदर की बॉडी को अच्छे से स्टडी करते हो, तो वो इश्यूज को डाइसेक्ट करता है। उसका एक आर्टिकल 2 नहीं 3 नहीं 18 पेजेस तक जाता है। तो हो सकता है कैरावन मैगजीन में सिर्फ 3 आर्टिकल्स हैं, एक है कोविड-19 के ऊपर, एक है डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन के ऊपर, एक है इंडो चाइना रिलेशंस के ऊपर, पर वो आर्टिकल 2 नहीं 3 नहीं शायद 18 पेजेस में जाएगा। वो प्री इंडिपेंडेंस हिस्ट्री ऑफ द चाइनीज रिलेशन से लेकर, इंडो चाइना वॉर से लेकर, द चाइनीज थ्रेट ऑफ पीजस वायरस से लेकर, COVID, whether it is a man-made or whether it is a
लेबोरेटरी मेड वायरस से लेकर कहां तक उस इशू को पकड़ेगा। तो रीडरशिप क्या दिखाता है? एरिया, जगह की प्रोफाइल की रीडर, पर माइंडसेट ऑफ द रीडर्स आल्सो। आई डोंट नो आप में से कितनों ने कभी, अगर आपका कोई कजन है या ब्रदर है तो ये सुना होगा, एक मैगजीन का नाम है योजना। कुछ लोग इसको एक गवर्नमेंट न्यूज़पेपर का नाम भी देते हैं। ये क्या है? ये 20-25 पन्नों की एक गवर्नमेंट की, ऑडिट ब्यूरो ऑफ गवर्नमेंट की या पॉलिट ब्यूरो की एक मैगजीन है, जिसको सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स और गवर्नमेंट जॉब्स एस्पिरेंट्स पढ़ते हैं, क्योंकि उसके अंदर गवर्नमेंट से रिलेटेड न्यूज़ पढ़ी जाती है। अभी मैं रीडरशिप ऑफ मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स, प्रिंट मीडिया के ऊपर सेकंड सेशन में और क्लियर करूंगा, पर इस वक्त मैंने सिर्फ अभी तक कुछ नहीं पढ़ाया, सिर्फ एक ही चीज बताई है आपको कि रीडरशिप और सर्कुलेशन दो अलग चीजें। ध्यान से समझिए। Circulation is the total number of copies distributed or the total number of hard copies sold at a given edition of a publication over a specific period of time, as opposed to reading. The total number of actual readers is not the circulation number, due to there can be non-readers and sometimes it can be passed along readership. तो sometimes, I don't know, आपने देखा होगा, आप एक साल की मैगजीन की सब्सक्रिप्शन ले, जो कि साल में 1500 रुपए की मैगजीन पड़ती है, पर वो आपको 50% डिस्काउंट पे हो दे रहा है। 750 रुपए पर मैगजीन की सब्सक्रिप्शन आ रही है, और साथ में 750 रुपए का ही आपको एक अमेज़न का गिफ्ट वाउचर आ रहा है, या आपको 750 रुपए का एक पेन स्टैंड दे रहा है, या 750 रुपए की एक आपको सिल्क की टाई दे रहा है। तो आप ये कहते हो, यार ये तो बड़ी मंदी का, खोटी का सौदा है। ये अपनी मैगजीन भी मेरे घर कोरियर से भेजेगा, छापेगा भी, 750 रुपए में ये मुझे मैगजीन भी दे रहा है और 750 का गिफ्ट भी दे रहा है। इसकी कमाई क्या है? आपको ये नहीं पता उसकी कमाई ये है कि उसकी नंबर ऑफ स्प्रेड ऑफ कस्टमर्स बढ़ गया। रीडरशिप में उसको उठाकर, चाहे उस मैगजीन को उठाकर कूड़ेदान में डाल दो, मैं चाहे उसे रद्दी के टोकरे में डाल दूं, मैं चाहे उसे लाइब्रेरी में रखूं या ना रखूं, बट सर्कुलेशन इज अबाउट कॉपीज डिस्ट्रीब्यूटेड और सोल्ड। The total number of actual readers is not the circulation number, due to non-readers, and sometimes it can be passed along readership. तो रीडरशिप को कैसे जज किया जाता है? Leadership research methods के through, which are mainly used to gather data regarding the reach of a specific print media and the characteristics of the audiences and the distribution of readers' attention among specific parts of publication and evaluation of contents and layout. दोस्तों, 10 साल पहले तक, सन 2010 की बात कर रहा हूँ, ज्यादा पुरानी बात नहीं है, आप सब मेरे ख्याल से इतने भी छोटे नहीं है, 10 साल पुराने की बात याद ना हो। उस टाइम पर इंडिया के अंदर एक चीज बड़ी बूमिंग थी, एंड दैट वाज नोन एज द सैटेलाइट टीवी बूम। ऐसा नहीं कि जी टीवी, सोनी टीवी बहुत पहले से हैं, पर आज से 10 साल पहले जो रियल बूम आया इंडिया में, वो आया मीडिया बूम। मीडिया बूम के अंदर ऑफ कोर्स डिजिटल कंटेंट भी आया, टीवी के न्यूज़ भी आए, चैनल्स भी आए, पर हर स्टेट ने, हर प्रांत ने अपनी 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 लोकल न्यूज़पेपर शुरू हुए, लोकल मैगजीन शुरू हुई, लोकल चैनल शुरू हुए। आई डोंट नो आप में से कितनों को पता है कि हर छोटे एरिया में छोटे 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 केबल टीवी वाले आज से 10 साल पहले आ गए थे, जो अपने ही कॉलोनी के 200-300 घरों के अंदर सिर्फ केबल का कनेक्शन देते थे। ऑफ कोर्स अब उसके बाद ये इंडस्ट्री में रेवोल्यूशन आई, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आए, वो बात की बात है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, जब ये सब आया, तब हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे न्यूज़पेपर्स ने देखा कि हमारी सर्कुलेशन और रीडरशिप दोनों घट रही है। तो सर्कुलेशन तो चलो आप सब्सक्रिप्शन के थ्रू बढ़ा सकते हो, पर रीडरशिप बढ़ाने के लिए उन्होंने कंटेंट मैनेजमेंट, याद कीजिए मैंने आपको कंटेंट पुरानी किसी क्लास में जरूर पढ़ाया था। तो 10 साल पहले क्या किया हिंदुस्तान टाइम्स ने और टाइम्स ऑफ इंडिया ने, जो बच्चे दिल्ली के रहने वाले हैं उनको ज्यादा समझ में आएगा। दे केम आउट विद अ मैगजीन सप्लीमेंट ऑफ द न्यूज़पेपर। जैसे हिंदुस्तान टाइम्स ने एचटी सिटी शुरू किया, जो आज तक अखबार के साथ आता है, और टाइम्स ऑफ इंडिया ने दिल्ली, जो लोग गुड़गांव आते हैं तो उसमें गुड़गांव टाइम शुरू किया, जो लोग ईस्ट दिल्ली में रहते हैं उन्होंने ईस्ट दिल्ली टाइम शुरू किया, जो लोग नॉर्थ दिल्ली में रहते हैं उन्होंने यूनिवर्सिटी कैंपस या अपना कमला नगर टाइम्स के कोई किसी भी नाम से उन्होंने एक सप्लीमेंट शुरू किया।
और उसके अंदर उन्होंने क्या शुरू किया, ऑल मसाला न्यूज, गॉसिप न्यूज, लेटेस्ट रणबीर कपूर की कौन सी फिल्म के अंदर कौन सा डायलॉग पॉपुलर है, आने वाली आई वुड से करवा चौथ पर कौन सी एक्ट्रेस किसके लिए कौन सा व्रत रख रही है, या आने वाले क्रिसमस के ऊपर किस टाइप की फैमिली में किस टाइप का पूजा है, या गणेश चतुर्थी के दिन प्रियंका चोपड़ा लंदन के अंदर अपने फॉरेनर हस्बैंड के साथ कैसे सेलिब्रेट कर रही है, ऑल दिस थिंग्स। साथ साथ उन्होंने शुरू किया एस्ट्रोलॉजी सेक्शन, क्रॉसवर्ड सेक्शन, सुडोकू सेक्शन, solve the riddle section, or तो और even they started something known as a comic section to change the pattern of readership. And to attract more readers, you need to understand the characteristics of the audience and the distribution of readers attention among specific parts of publication, जो मैंने अभी पढ़ के सुना। So readership को जज करना is not an easy job. बड़े बड़े प्रोफेशनल्स, बड़े बड़े आई वुड से एनालिसिस्ट्स आर सिटिंग टू अंडरस्टैंड द माइंडसेट, टू प्रोफाइल द एग्जैक्टनेस ऑफ द पीपल हु आर इनटू रीडिंग अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। अब जैसे कि आप सब ने जेके रॉलिंग की कहानी सुनी हुई है। जेके रॉलिंग कौन है? द क्रिएटर ऑफ हैरी पॉटर। पर जेके रॉलिंग की असली कहानी क्या है? जब उसने हैरी पॉटर को बनाया तो पूरे के पूरे वेस्टर्न मीडिया ने 6-7 साल उसे रिजेक्ट किया। उन्होंने बोला ये कैसी उल्टी सीधी आई वुड से विजर्ड्स की स्टोरी है और फालतू कैरेक्टर्स की स्टोरी है। पर किसी ने ये सोचा कि नहीं, न्यू जनरेशन के लोग इस टाइप की स्टोरी को पढ़ना, फैंटेसी स्टोरी को पढ़ना, प्योरली क्रिएटिव स्टोरी को पढ़ना पसंद करेंगे। एंड वी ऑल नो उसके बाद टुडे हैरी पॉटर इज टुडे नॉट एनी मोर अ प्रोडक्ट, इट इज मोर और लेस एन इंडस्ट्री टुडे। हैरी पॉटर की टी शर्ट से लेकर, हैरी पॉटर के डिजाइनर मग से लेकर, हैरी पॉटर की पेंसिल से लेकर, स्टेशनरी से लेकर, क्या क्या चीजें मार्केट में नहीं बिक रहा। जैसे 1960s-70s में डोनाल्ड डक आया था, स्नो वाइट आई थी, तो उसकी फ्रेंचाइजी के ऊपर काफी सारी चीजें बिकी थी। डोनाल्ड डक की फ्रेंचाइजी के ऊपर कितने सारे टॉय स्टोर्स ने डोनाल्ड डक के टॉयज को बेचना शुरू किया। मिकी माउस बिकेम अ वेरी बिग नेम। तो थोड़ा सा मैं टॉपिक से भटक रहा हूं, पर वापस अपने टॉपिक पर आ रहा हूं। रीडरशिप is all about what a person gets into। जैसे वो कहते हैं ना, बूफे में खाना परोसना इज सर्कुलेशन, पर कौन कौन से टाइप का खाना उठाकर खा रहा है, दैट इज रीडरशिप। अब आप एक क्या कहते हैं, साउथ इंडियन टिपिकल ब्राह्मण वेडिंग के अंदर अगर आप रोगन जोश और चिकन तंदूरी रख देंगे तो वो तो फिर गलत हो जाएगा ना। वहां पर तो वो इडली रसम बड़ा वेजिटेरियन खाना ही चलेगा। या आप एक जिसे कहते हैं हैदराबादी, आई वुड से नवाब की शादी के अंदर अगर करेले की सब्जी या कद्दू का रायता सर्व करेंगे तो शायद वो भी नहीं वहां पर कोई खाएगा। तो वहां पर तो आपको लबाबदार चिकन और नवाबी कबाब एंड व्हाट नॉट सर्व करने पड़ेंगे। So similarly is the case of leadership, depending upon area, depending upon people, depending upon mindset। अब जैसे मेरे साथ ये घटना घट चुकी है। लॉकडाउन से पहले मुझे एक बारी मौका मिला केरला जाने का। केरल के अंदर आई वाज सो सैड कि वहां पर इंग्लिश न्यूज़पेपर तक लोग ज्यादा नहीं पढ़ते। मैंने बोला अरे इंग्लिश, हिंदी तो खैर बड़े दूर की बात है। सुबह मैंने अपने अपने होटल से बोला कि आई नीड टू द इंग्लिश न्यूज़पेपर। कहता साहब 1 घंटा लगेगा, मंगवाना पड़ेगा। क्यों? यहाँ पर तमिल तेलुगु के ही न्यूज़पेपर चलते हैं। So probably the language, the dialect, the demographics, because India is a country of multi-diverseness. So readership is something you need to understand by understanding the profile of the people. Important slide है, but जिसे क्या कहते हैं, टेक्निकल स्लाइड है, समझने की कोशिश कीजिए। To calculate the total readership, the simple rule is to multiply the average net circulation, that is average gross distribution less returns, by the readers per copy. It is assumed that anyone picking up a copy of publication reads or looks at it. These includes print media, broadcasting news, and more recently the internet, which is online newspapers, news blogs, news videos, live videos, streaming, etc. Students, it will be very, I would say, wrong for me if I don't here interrupt for 2 minutes and tell you something about
how these platforms of Instagram, Twitter are making money for celebrities. जहां आपकी मिलियन से ऊपर की फॉलोइंग हो गई, 2 मिलियन से ऊपर की फॉलोइंग हो गई, इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पेज यू टू ट्वीट अबाउट समथिंग। आज एक लिनार्डो डिकैप्रियो की पिक्चर हिट हुई 10 साल पहले, टाइटैनिक, उसकी हॉलीवुड में बहुत बड़ी फॉलोइंग हुई और आज की डेट के अंदर ही इज अ वेरी 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 बिग इंटरनेशनल हॉलीवुड स्टार। अगर आज लिनार्डो डिकैप्रियो लिखता है दैट ड्यूरिंग कोविड टाइम्स आई फाइंड दैट द एवियन मिनरल वाटर इज द बेस्ट फॉर हेल्थ, आई एम ड्रिंकिंग इट, उसने उसकी एक पर्सनल ट्वीट लिखी है, पर उसकी वजह से कोई बड़ी बात नहीं है कि एवियन की 10% सेल बढ़ जाए और एवियन वाला उसको $100,000 पर ट्वीट देने के पैसे थे। So there are lots of paid tweets, paid sponsorship, paid content. आपने तो देखा ही होगा, मैंने इसको अपनी पिछली क्लास में भी बोला था जब मैंने सोशल मीडिया की क्लास ली थी, that Facebook started as a social networking site. Today it is becoming a pay content site to promote products and businesses. किसी को अपना प्रॉपर्टी बेचनी है, वो फेसबुक पर अपनी पेड ऐड डाल देता है। किसी को आई वुड से किसी पर्टिकुलर स्ट्रेस मैनेजमेंट कोर्स के बारे में बताना है या ऑनलाइन वेबिनार करना है तो वो उसके पेड कंटेंट को डाल देता है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज दैट द कॉन्सेप्ट ऑफ डिजिटल कंटेंट कैन नॉट बी इग्नोर्ड। हालांकि द important things is readership in media is far more complex than circulation. वो तो जितने कॉपियां छपी, जितनी कॉपियां मार्केट के अंदर आपने आपने धकेल दी, आपने बोल दिया कि ये बुक सक्सेसफुल है, पर उस बुक को कितने लोगों ने पढ़ा? अब चेतन भगत की एक किताब आती बाद में है और 3 लाख 4 लाख कॉपियां उसकी नॉवेल्स की हर दुकान पर पहुंच जाती है। चेतन भगत की किताबों से नॉवेल्स भरे हुए हैं, और तो और कई बार रेड लाइट पर रुको तो somebody is selling even a चेतन भगत novel. But question is how many people really are reading this particular book? That is what readership in media is all about. देखिए, पता नहीं मुझे ये कहना चाहिए कि नहीं, बट आई थिंक somebody is like driving a car and I don't know आप कैसे कंसंट्रेट कर सकते हैं। तो आगे से अगर रिक्वेस्ट है कि छोटी सी क्लास होती है, ज्यादा लंबी नहीं होती, 40 मिनट की एक सेशन है, दूसरा सेशन भी 30-35 मिनट का होता है। तो कोशिश ये कीजिए कि अगर आप एक टेबल कुर्सी पर बैठकर अगर मेरी क्लास अटेंड करें, बाकी ऑफ कोर्स unless and until it's an emergency, so it's always good to concentrate with a paper pen and then take a class. चलिए, कह रहा हूँ मैं, अब इससे ज़्यादा पर्सनल नहीं बोलूंगा। Okay, now very important thing, I'm now coming. Print media challenges. What are the challenges faced by print media? मैं बार बार एक ही चीज कहता हूँ, मेरा एक नजर क्लॉक पर होती है और एक नजर आपके क्या कहते हैं इस पर्टिकुलर प्रोग्राम पर होती है। तो वी हैव 13 मोर मिनट्स, जिसमें से मैं 3 to 5 मिनट्स और आपको प्रिंट मीडिया के चैलेंज के बारे में बताऊंगा। पर सबसे पहली चीज, इससे पहले मैं प्रिंट मीडिया के चैलेंज की बात बताऊं, आप सबने सुना होगा कि डोनाल्ड ट्रंप को CNN से दिक्कत क्या है। क्या बोलता है डोनाल्ड ट्रंप CNN के बारे में? जिनको नहीं पता मैं बता देता हूं। डोनाल्ड ट्रंप CNN को कहता है यू आर फेक न्यूज। वो CNN से उसका 10 साल पुरानी लड़ाई है, क्योंकि पिछले इलेक्शन में जब सबने हिलेरी क्लिंटन को विनर 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 बोल दिया था, तो डोनाल्ड ट्रंप कहता था कि नहीं, अमेरिकन वुमेन विल वोट फॉर मी। तो CNN की पोल ने, ABC की पोल ने, कई सारे न्यूज ब्रॉडकास्टर्स की पोल ने बोला था कि ही स्टैंड्स नो चांस, रिपब्लिकन पार्टी स्टैंड्स नो चांस, ट्रंप विल नेवर बिकम द प्रेसिडेंट। और इट हैपेंड उल्टा, ट्रंप बिकेम द प्रेसिडेंट। उसके बाद उसकी नाराजगी डोनाल्ड ट्रंप की इतनी ज्यादा बढ़ गई CNN से कि जो CNN का ऑफिशियल रिपोर्टर था जिम एकोस्टा, अगर आपने नाम कभी सुना है या आप लोग कभी इंटरनेशनल चैनल्स देखते हैं, तो उसको वो पब्लिकली ह्यूमिलेट करता था हर हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो इन एवरी प्रेस कॉन्फ्रेंस ही वाज पब्लिकली रिप्रिमांडेड, और बीच में कुछ टाइम के लिए व्हाइट हाउस ने भी उसको बहुत अच्छे से समझाया था कि दैट ही शुड ऑलवेज टॉक टू द प्रेसिडेंट इन अ वेरी डिफरेंट मैनर। खैर, इस कहानी के पीछे का राज क्या है? राज ये है, फेक न्यूज, मैन्युफैक्चर्ड न्यूज, a news which is inclined towards a government.
कल परसों के अखबार पढ़िए, प्रणय रॉय एंड राधिका रॉय, ये लोग कौन है? एनडीटीवी के प्रमोटर डायरेक्टर्स हैं। इनको डिबार कर दिया है सिक्योरिटीज एक्सचेंज ब्यूरो ने, सेबी ने, एक पर्टिकुलर शेयर की ट्रेडिंग से या एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ न्यूज देने से। क्यों? क्योंकि पीपल से दैट दे आर बायस्ड टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी। वो एक पर्टिकुलर पार्टी की ही न्यूज को हाईलाइट करते हैं और दूसरी पॉलिटिकल पार्टी की न्यूज को डिग्रेड करते हैं। Students, the same is the problem with print media, and that is the biggest challenge of print media on readership today is the growth of paid news. Students, do not confuse this with advertising, please. एडवर्टाइजिंग के अंदर क्या होता है? कोई भी आर्टिकल छपता है, उसके नीचे न्यूज़पेपर डिस्क्लेमर देता है, the views expressed are paid for and it does not reflect the company's or the newspaper's authority. कितनी बारी ऐसा हुआ है कि अखबार के अंदर एक ऐड आती है कि दे पर्टिकुलर कार कैन गिव यू 20 किलोमीटर्स इन लीटर और 22 किलोमीटर्स इन लीटर, पर साथ में उस ऐड के अंदर एक डिस्क्लेमर भी आता है, under test conditions, under so and so conditions, as divided by so and so conditions apply, जिसको हम commonly कहते हैं। Advertisement is different from paid news, दोनों में फर्क समझो। एक ad जिसका एग्जांपल आप सबको ने सुना हुआ है, फिर भी मैं 2 मिनट आपके और लूंगा और बताऊंगा। सेल फ्लैट 60% ऑफ, बहुत बढ़िया। फ्लैट 60% ऑफ सेल लिखने का मतलब है अगर 1000 रुपए की चीज है तो उसके ऊपर 600 रुपए कम हो जाने चाहिए। मैं शोरूम में जाता हूं और मैं दो बढ़िया एक 1000 रुपए की सो कॉल्ड मॉडर्न बाजार से या बिग बाजार से 2000 रुपए का सामान लेता हूं, ये सोच के इसमें जब मैं वो देने जाता हूं तो 60% तो ऑफ है, बट मिनिमम 10,000 की सेल जरूरी है। मैंने बोला ये तो आपने न्यूज पे लिखा ही नहीं, दिस इज सप्रेशन ऑफ फैक्ट, दिस इज डिसेप्शन। कहते नहीं सर, डिसेप्शन तब होता जब हम ये लिखते कि फ्लैट 60% ऑफ ऑन मिनिमम अमाउंट। हमने तो अगर आपके साथ हमने तो केवल सच को आपकी दिमाग की डेफिनेशन पर छोड़ दिया। हम ये नहीं कह रहे कि हमने झूठ बोला है, हमने लिखा है फ्लैट 60% ऑफ। बिल्कुल है, आप 10,000 का सामान लीजिए और 6,000 का डिस्काउंट लीजिए, 4,000 रुपए में हम आपको सामान दे देंगे। पर मैंने बोला मेरे को तो जरूरत ही 2,000 के सामान की है, मैं 10,000 का सामान क्यों लूं? तो जब ये मैटर एडवर्टाइजमेंट ब्यूरो के पास पहुंचा या कोर्ट के अंदर गया, तो इसके ऊपर क्या रिएक्शन था कोर्ट का? कोर्ट ने ये बोला कि ये हम मानते हैं कि उन्होंने सच नहीं बोला, पर साथ साथ उन्होंने आपको चीट भी नहीं किया, तो आगे से एक डिस्क्लेमर दे दो, कंडीशंस अप्लाई। इसलिए आपने देखा होगा जो मर्जी कंपनी ऐड में लिख देती है, पर एक छोटा सा ना के बराबर स्टार लगाती है, जिसको ढूंढना और पढ़ना बड़ा मुश्किल होता है। सब्जेक्ट टू कंडीशंस, सब्जेक्ट टू क्वालिटी पॉलिसी, सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी। कई जगह पर तो ये लिखा होता है फ्लैट 60% डिस्काउंट सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी। जब आप पहुंचते हो तो सबसे पहला जवाब क्या होता है? सर वो 60% वाला दुकान तो सुबह 9:30 बजे स्टोर खुला था, 9:35 तक सारा का सारा वो बिक गया। हम तो ये कहेंगे अब अवेलेबिलिटी है ही नहीं, अब तो सिर्फ 10% डिस्काउंट वाले प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी है। स्टूडेंट्स, ये मैंने एग्जांपल आपको इसलिए दिया है क्योंकि एडवर्टाइजमेंट इज अ डिफरेंट गेम। पेड न्यूज का मतलब है व्हेन चैनल्स, रिपोर्टर्स, राइटर्स are manipulated to write not what is true but write what is to the liking of a particular individual or an industry। पर दोस्तों मत मानना, हम सब अपने इंडियन को दोष देते हैं, पर सबसे बड़ा पेड न्यूज का जो एग्जाम्पल है वो यूएसए में हुआ था, यूरोपियन कंट्री में हुआ था। और आज से कुछ साल पहले, पता नहीं कुछ साल तो नहीं, शायद 1 या 1.5 साल पहले तब हुआ था जब मैगी को लोगों ने जहर बोल दिया था, उसके अंदर लेड कंटेंट था। इंडिया के सबसे बड़े सो कॉल्ड
हमारी एनवायरमेंटल एंड फूड टेस्टिंग एजेंसी ने बोल दिया था मैगी इज हार्मफुल फॉर किड, पर उसको मैगी की प्रमोशन कर करके उसके बारे में पॉजिटिव चीजें डॉक्टरों से बुलवा बुलवा के इन्होंने इस चीज को लोगों के दिमाग से बुलवा दिया। मुझे पता नहीं आप में से कितने लोग दिल्ली के हैं और रोज अखबार पढ़ते हैं, क्योंकि आज की अखबार में कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज आई है जिससे मैं आपको बताऊंगा कि कल परसों में पेड न्यूज पक्का आएगी। आज के अखबार में हनी के अंदर एडेड शुगर सिरप मिला हुआ है, इट इज नॉट प्योर हनी। इसके अंदर पतंजलि और डाबर का नाम प्रोमिनेंट शब्दों में इंडिया की सबसे और जर्मन की सबसे बड़ी फूड टेस्टिंग एजेंसी ने लिखा है। पर आप देखना कल या परसों में क्या होता है, कोई ना कोई बहुत बड़ा डॉक्टर, कोई ना कोई बहुत बड़ा आयुर्वेदिक स्पेशलिस्ट, कोई ना कोई बहुत बड़ा सो कॉल्ड इंसान ओपनली बोलेगा कि नहीं ये सब गलत है, हमारे हिसाब से डाबर की हनी या पतंजलि की हनी इज प्योर हनी, इट इज गुड फॉर हेल्थ एंड इट बूस्ट इम्यूनिटी एंड व्हाट नॉट। स्टूडेंट्स, अब इस बात पर मैं और आप बहुत लंबी आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं कि सर ये इसके अंदर एथिक्स क्या है, मोरालिटी क्या है, बट प्लीज अंडरस्टैंड वन थिंग, वी आर लिविंग इन अ वर्ल्ड वेयर the jargon is old is gold but it is only the new one that sells। समझो, ओल्ड इज गोल्ड होगा पुराना सोना। सब कहते थे ना ओल्ड इज गोल्ड, यार ओल्ड इज गोल्ड, पुराना हो गया तो क्या हुआ, ओल्ड इज गोल्ड नहीं, ओल्ड इज गोल्ड बट इट इज ओनली द न्यू वन दैट सेल्स। पुराने को है तो पुराना अपने पास ही रखो, क्योंकि बिकता वही है जो नया है, यानी कि जो दिखता है, जिसकी प्रमोशन ज्यादा है, वो बिकता है। इसीलिए न्यूज चैनल्स आपने देखा होगा, दे हैव बिकम वेरी स्पाइसी। स्पाइसी का मतलब वो तड़के भड़की वाली न्यूज नहीं, स्पाइसी का मतलब ये है दैट दे समटाइम्स ट्राई टू गिव अ डिफरेंट व्यू टू अ डिबेट। अब मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों ने से शंबित पात्रा या सुदीन ओवैसी या सुब्रमण्यम स्वामी या वो जो हमारे जेएनयू के कुछ महान लोग हैं, शैला रशीद और दो और हैं, नाम मैं भूल रहा हूँ, अपना कन्हैया कुमार और एक दो और भी हैं, उन सब के कभी आपने न्यूज या व्यूज देखे? उनको सेंसेशनलाइज किया जाता है। कुछ चैनल्स पर तो दे गेट पेड टू create all this ruxus or to lower the standards of news। बहुत से टीवी शोज ने वो कॉमेडियंस ने अर्नब गोस्वामी की क्या कहते हैं इतना इस हिसाब से उसकी खिल्ली उड़ाई है, उस हिसाब बोलने के तरीके के ऊपर अपने ही क्या कहते हैं व्लॉग्स या ब्लॉग्स कर दिए। सो व्हाट एम आई ट्राइंग टू से, जो सबसे बड़ा प्रिंट मीडिया का चैनल इज पेड न्यूज। और चैलेंजेस क्या हैं इसके अंदर, 3 या 4 बड़े इंपॉर्टेंट चैलेंजेस हैं, मैं सेकंड सेशन में कराऊंगा, हम किसी भी टाइम डिस्कनेक्ट हो सकते हैं, 3 या 4 मिनट हैं। किसी को अगर कुछ पूछना है तो वो पूछ सकता है, और I'll be keeping quiet for the next 30 seconds, but in case nobody speaks for the next 30 seconds, I will not waste even the last 3 and 4 minutes। I will start with the challenges of print media, या the challenges of what you can say readership in media। देखिए अल्टीमेटली हम रीडरशिप पढ़ रहे हैं, मैं जल्दी से आधे मिनट के अंदर रिकैप कर रहा हूं। मैंने आपको शुरुआत करी क्लास में रीडरशिप इशू को ना बताकर, पर रीडरशिप और सर्कुलेशन में डिफरेंस बता के मैंने आपको ये बताया कि कितनी किताबें छपी, कितनी मैगजीन छपी, कितनी अखबारें छपी, कितनी दुकान पर गई, वो अलग होता है, कितनी बिकी और पढ़ी गई वो अलग होता है। तो सर्कुलेशन को तो आराम से आप फिगर को निकाल सकते हैं, ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन, बट रीडरशिप को असेस करने के लिए यू रिक्वायर something called the role of professionals। You require people who can study a specific print media, who can study the characteristics of the audiences, who can study the distribution of readers' attention among specific parts of publication, and very important, the evaluation of content। Content management अपने में बहुत बड़ी चीज है। मिर्जापुर नाम का एक सीरियल आया था, उसकी सीजन 1 चला, और अब देखिए अब उसको सीजन 2 को उसके कंटेंट को कैसे मार्केट किया जा रहा है, उसके डायलॉग्स को, उसके बोलने के तरीके को, एक इमेज ऑफ कालीन भैया को, एक इमेज ऑफ गुड्डू
पंडित को या एक इमेज ऑफ इवन द लेम ससुर जी ऑफ होम, कुलभूषण खरबंदा's role and all those things, etc. Students, what am I trying to tell you? Readership is a complex part, circulation is an easy part. And then I define that to calculate total readership, the simple rule is to multiply the average net circulation, that is average gross distribution less returns by the readers per copy. Normally, this is the way इसके अंदर आज की डेट के अंदर readership is not only confined to newspapers, magazines, and even television news. It is even today on internet, online papers, news blogs, news videos, and even live streaming. आपने देखा होगा लाइव स्ट्रीमिंग एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर पे पर मिनट पीपीएम का एक कॉन्सेप्ट आता है, उसको मैं कभी और टाइम मिलेगा तो बताऊंगा। पर इसके बाद मैंने आपको चैलेंजेस ऑफ प्रिंट मीडिया अभी सिर्फ शुरू कराया है, इसको मैं अगले सेशन में बहुत डिटेल में कवर करूंगा। पर इसके अंदर मैंने आपको अभी तक एक ही चैलेंज बताया है, द ग्रोथ ऑफ पेड न्यूज। इसके अंदर क्या होता है, रिपोर्टर, कैमरा, ब्रॉडकास्टर, दे आर ऑल पेड टू शो वन साइड ऑफ द न्यूज। उनको ये बोला जाता है कि इस न्यूज को, अब जैसे कि फार्मर्स एजिटेशन इन एंड अराउंड द बॉर्डर्स ऑफ दिल्ली, फार्मर्स के मुद्दे के ऊपर चैनल्स ज्यादा बात नहीं कर रहे। मुद्दा क्या है, किस तरह से इनको बॉर्डर के ऊपर तकलीफ दी जा रही है, किस तरह से इनको रोका जा रहा है, किस तरह से इनके ऊपर पुलिस का वार किया जा रहा है, क्या रीजन है कि इनको लोग लंगर दे रहे हैं और लोग फार्मर्स के साथ हैं। पर फार्मर्स के इश्यू के ऊपर मुझे नहीं लगता कोई चैनल कर रहा है। इज इट राइट, इज इट रॉन्ग, आई लीव इट टू योर imagination. Students, we can get disconnected anytime. So if you have any questions, you can ask me. Otherwise, we'll continue in the next session. I'm going to keep quiet for 30 seconds. अभी तक हमने सिर्फ इतना ही पढ़ा है। जिनके पास पेपर पेन है, जिन्होंने कोई पॉइंट्स लिखे हैं, I'll be very grateful. You can ask me. I'm not going to keep quiet. I think nobody is asking me anything, so I would not like to unnecessarily beat around the bush. Let's come to the next point. So challenges faced by print media on readership. Number one, paid news. इसको मैंने cover कर दिया. Second thing, major investment to establish presence in new generation. न्यू जनरेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? मैं इसको प्रॉब्लम नहीं, मैं इसको अपॉर्चुनिटी पहले बोलूंगा, फिर प्रॉब्लम बोलूंगा, क्योंकि ये प्रॉब्लम भी है पर पहले अपॉर्चुनिटी। और वो क्या है? द स्मार्टफोन। पता नहीं मुझे कहना चाहिए कि नहीं कि आज तो सेलिब्रिटीज बच्चा क्या कहते हैं, पैदा बाद में होता है और फेसबुक का पेज और इंस्टाग्राम का अकाउंट पहले बन जाता है। मुझे तो यही नहीं पता कि जब तैमूर अली खान 21 साल का होगा और उसकी अगर आप फोटो में ढूंढना शुरू करोगे तो पता नहीं कितने हजारों लाखों आई वुड से गीगाबाइट्स में उसकी फोटो में और आर्टिकल्स होंगे, क्योंकि आज की डेट में उसके ऊपर इतना लिखा जा रहा है। ही इज नॉट इवन अ टॉडलर राइट नाउ, ही इज नॉट इवन अ टीनेजर। And we all know we have got the new kid of Anushka Sharma and Virat Kohli coming in this world. What's going to happen to that child? कि पहले दिन से ही the smartphone is going to capture the walking, talking, reading, eating, even hair styling, dressing, clothes, shoes. वो कहते हैं ना, सिर के बाल से पैर के नाखून तक एक एक चीज को। Today, the word that I'm saying, one of the major challenges of print media is establishing presence in the new generation. कैसे एक particular blog, site, channel new generation में popular हो, क्योंकि today